Hello, welcome to my accountancy class, the Master's Word. If you like the video, give a thumbs up to like the video and subscribe the channel so that whenever I upload the new video, it can reach to you first and you may have the first mover advantage. My dear students, today in this class of accountancy, we are going to solve question number 24, chapter dissolution of a partnership firm, C.S. Grewal, edition 2020 to 21. I have mentioned here question also in very short. First of all, I would like to explain the question so that you may understand the question first and then we will come on the solution. Question, in this question number 24, partners A and B sharing profits and losses in the ratio 3:2, and on 31st March 2020 you have been given the balance sheet of these two partners. Creditors 38,000, Mrs. A's loan 10,000, loan by B 15,000, reserves 5,000, capital of A and capital of B respectively. And after that, cash at bank 11,500, stock 6,000, debtors 19, furniture, plant, investment in profit and loss account 7,500. After that, in this question, you have been given some adjustments to realize the assets and liabilities, and finally, you have been asked to prepare something. According to the concept which you have learned in the last videos, when we start to solve this question or these types of questions, our first step is always read the last line of the question and draw the format. Read the last line of the question and draw the format. First of all, you have been asked to prepare the relation account, capital account, and the bank account. First, draw the format of relation account. Simply, you are to draw the format in your notebook. Relation account, capital account, and the bank account. Here, we are not having the space. After 2 minutes, I will draw the format for bank account. It was the first step. Read the last line and draw the format accordingly. The second step of the question is, now we should rub this. Now the second step of the solution is balance sheet of the question. We start to close the accounts. First, see all those realizable assets which can be realized and converted into cash, or the partner can take it. Like the stock, debtor, furniture, plant and investment. 1, 2, 3, 4, 5. These 5 assets can be realized, can be sold and can be converted into cash. So the assets account always have the debit balance. You have to close these accounts to credit it. So open a temporary account, that is realization account here. Debit the realization account. Realization account debit to asset means to stock, to debtors account, to furniture account, to plant account, to investment account. असेट्स अकाउंट आप क्लोज कर रहे हैं सारे के सारे, तो आप पहला स्टेप होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वो अकाउंट्स चेक कीजिए जो आपके रियलाइज हो सकते हैं, जिनसे कैश आ सकता है। तो बैंक तो आप इग्नोर करें क्योंकि आपका बैंक बैलेंस पहले से ही होता है, कैश है, उसको रियलाइज करके क्या कैश आएगा। स्टॉक आप बेच कर कैश ला सकते हैं, डेटर्स है, फर्नीचर है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है। 1, 2, 3, 4, 5 ये असेट्स हैं, डेबिट बैलेंस रखती हैं। इन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। एक टेम्परेरी अकाउंट रिलेशन अकाउंट खोलते हैं तो एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट। रिलेशन डेबिट टू स्टॉक, डेटर, प्लांट, मशीन। आपने इन असेट्स अकाउंट को क्रेडिट करके और वो टेम्परेरी अकाउंट खोल के डेबिट करके इन अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। तो अब आप बैलेंस शीट पर नजर यदि रखेंगे तो अब आपको ये सारी असेट्स अकाउंट क्लोज नजर आ रहे हैं। बैलेंस शीट में असेट साइड केवल 2 चीजें बचती हैं आपकी, कैश एट बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करें। जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनके अकाउंट्स को क्लोज करना है। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, क्लोज करने के लिए डेबिट करना होगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट। ये मिसेस लोन ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, मिसेस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
तो रिलेशन के क्रेडिट साइड में आपने क्रेडिटर्स लिख डाले हैं और मिसेस ए का लोन लिख डाला है, और आपने यहां 1 2 3 4 5, तो आपने ये चीजें समझ में आ गई और यहां से आपने ये इनका अकाउंट्स क्लोज कर दिया। अब बात चलती है कि ठीक है, लोन पार्टनर के लोन का पेमेंट डायरेक्टली पे किया जाता है, रिलेशन अकाउंट में मेंशन नहीं किया जाता, तो इनका रिलाइजेशन का पेमेंट रिलेशन अकाउंट के थ्रू पेमेंट नहीं किया जाएगा पार्टनर का, क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसीडर नहीं की जाती। तो बी का जो लोन है अभी हम पे करके दिखाएंगे 2 मिनट बाद। अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पर, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आपको ओपन करना है, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, ड्रॉ किया, इनके बैलेंसेस ए का 10,000 और बी का 8,000 आपने मेंशन कर दिया, ए का बैलेंस और बी का बैलेंस, और यहां से आपने ये भी हटा दिया। रिजर्व, पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, तो आपने इसे पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो एंट्री बनती है रिजर्व डेबिट अकाउंट क्लोज टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ा दी पुराने रेशियो में, रेशियो था 3:2 का, तो आपने 5,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं आप लॉस, ये लॉस है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब असेट साइड में दिया जाता है तो इसका मीनिंग है कि पी&एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, और पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा, ये पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट कर देगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया लॉस के थ्रू। इस तरीके से आपकी सारी चीजें बंद हो चुकी हैं अकाउंट से, केवल अब जो अकाउंट्स आपको नजर आ रहे होंगे कैश अकाउंट और लोन अकाउंट, लोन पार्टनर का। आप बैंक अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर देंगे, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट जैसे ही आपने ड्रॉ किया, यहां टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, जो अभी आपका बैंक बैलेंस ओपनिंग था वो लिखना है, और यहां पर साथ के साथ बिल उस पार्टनर के लोन का पेमेंट करके देना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो शायद बी था, बी 15,000 का उसका पेमेंट था, आपने लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया, पार्टनर के लोन का डायरेक्ट पेमेंट करना है, तो एंट्री बनती है लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक मींस बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट मींस कम कर दिया माइनस, और लोन के नाम से। बैंक बैलेंस अभी हमने देखा था क्वेश्चन में, बैंक बैलेंस था आपका इसमें, अभी आपको बैंक बैलेंस दिया था 11,500, तो आपने 11,500 इसका ओपनिंग बैलेंस लिख डाला, तो अभी आपको मैं बैलेंस शीट पर वापस थोड़ा सा वीडियो को बैक करना, आपको बैलेंस शीट नजर आ रही थी जिसमें केवल 2 आइटम्स थी, बैंक बैलेंस, तो आपने बैंक अकाउंट खोला, इसका डेबिट बैलेंस यहां लिख डाला, साथ के साथ लायबिलिटी में एक चीज बची थी पार्टनर का लोन, और ये आपका बी का था बीज लोन अकाउंट, तो आप लिख दें बीज लोन अकाउंट, तो इसका पेमेंट कर डाला। अब आपने जब बी के लोन अकाउंट का पेमेंट किया तो जर्नल एंट्री बनती है बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट। आपके सारे अकाउंट्स बैलेंस शीट पे क्लोज हो चुके हैं, केवल 3 अकाउंट्स को छोड़कर। एक तो आपने टेम्परेरी अकाउंट रिलाइजेशन अकाउंट खोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैंक अकाउंट। क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप, रीड द लास्ट लाइन, डू द फॉर्मेट। सेकंड स्टेप, बैलेंस शीट ऑफ द क्वेश्चन, बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स आपको दी हुई है सारे आपने क्लोज कर दी या फिर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी। थर्ड स्टेप, एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की एडजस्टमेंट सोल्व करनी स्टार्ट कर देते हैं।
ए टूक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000। आपका पार्टनर है, कह रहा मैं तो असेट ले जाऊं। ऐसे कैसे ले जाएगा भैया? तो अपने घर में फर्म की असेट ले जाएगा, ठीक है, तो फर्म तेरी कैपिटल को कम कर रही है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बैंक पर तो फर्क पड़ा नहीं, और इन्हीं तीन अकाउंट से किस से, लाइशन, कैपिटल और बैंक से ही सारी ट्रीटमेंट और जनरलाइटीज बननी है। तो अब ए जब इन्वेस्टमेंट ले गया तो इसकी कैपिटल को तो डेबिट कर दिया, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये देखें, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे, रियलाइजेशन से, ये रहा, इन्वेस्टमेंट के नाम से, टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिखना है केवल इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज करने के लिए, और कुछ नहीं। एंट्री बनी कैपिटल डेबिट टू रिलेशन, तो रिलेशन को क्रेडिट कर दिया बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,000। साथ के साथ ही एग्री टू, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, वो एग्री हो गया कि मिसेस एज लोन, कि अपनी जो वाइफ का लोन है वो उसको पे कर देगा, उसको सेटल कर देगा। हमारा जो पार्टनर है जो फर्म की लायबिलिटी को पे करेगा, तो फर्म उसको कंपनसेट करेगी उसकी कैपिटल को बढ़ाकर, यानी कैपिटल को क्रेडिट कर देगी। तो हमने ए की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में डिस्क्लोज करा मिसेस एज लोन। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आपने डेबिट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट देखिए डेबिट है, ये रहा, एज लोन, एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मिसेस एज लोन। कुल मिलाकर यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी ले रहा है तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है, कैपिटल बढ़ जाती है। और लायबिलिटीज यहां लिखी जाती हैं, लेकिन रियलाइज कहां होंगी, रियलाइज यहां होंगी। रियलाइज मींस या तो कैपिटल के नाम से या बैंक के नाम से पेमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रियलाइज्ड असेट्स, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट। जब आप असेट्स को रियलाइज करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में डिस्क्लोज कर दें स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, और इन सबका टोटल। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन मींस रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, बैंक से। तो 53,000 इनका टोटल आया असेट्स का, 53,000 आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 1600 ऐड किए हुए हैं, और क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि हमें 3700 फुल पेमेंट कर दो, फुल सेटलमेंट में। तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो एंड बैंक को क्रेडिट करना है, तो बैंक आपका क्रेडिट होगा, किससे क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन के नाम से। तो रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस और क्रेडिटर्स, इन दोनों का टोटल आपका आ जाएगा 38,600। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट जब करते हैं जब बैंक बैलेंस कम होता है। रियलाइजेशन के डेबिट साइड देखें, रियलाइजेशन डेबिट कर दिया है क्रेडिटर से और रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। अब आपकी सारी एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन हो चुका है। सारी एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन हो चुका है। अब आप क्लोजिंग शुरू करते हैं। फोर्थ स्टेप होता है हमारा क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टार्टिंग होती है रियलाइजेशन अकाउंट से। फर्स्ट डू द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड एंड देन चेक द डिफरेंस। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया था और ज्यादा वाला आपने फिर यहां लिखा है और डिफरेंस निकाला डेबिट और क्रेडिट का माइनस करके, तो आपका 6600 एक्सेस बैलेंस आया डेबिट का ओवर द क्रेडिट, दैट इज द लॉस। और यहां आपने क्या किया, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट इन देयर पीएसआर, दैट इज 3:2। तो 6600 के लॉस को आपने इनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया, इससे इनकी कैपिटल कम हो गई। एंट्री बनी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा लॉस, और ये आपने इनको लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब आपका ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, केवल 2 अकाउंट्स ओपन रह गए, कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। अब इनको भी क्लोज कर देना है, कैसे,
क्रेडिट का टोटल किया, माइनस किया डेबिट का, तो अब आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ना करके बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं और यहां क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आपने कर दी बैंक के नाम से। एंट्री बनी कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट मींस बैंक हो गया फिर से क्रेडिट। ए इज कैपिटल अकाउंट के नाम से, बी इज कैपिटल अकाउंट के नाम से। अमाउंट कहां से लिख देते हैं, 65404360। देखिए आपने सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं, तो क्लोज तो कैश अकाउंट या जो बैंक अकाउंट बना रहे हैं वो भी क्लोज होना है। इसका मतलब उसका कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आप जब इसका टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। यदि नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आपने इसका टोटल किया तो 64,500 और इसका भी टोटल करेंगे तो 64,500 ही आएगा, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, अरिथमेटिकल हो सकती है प्लस माइनस में, क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो कोई मिस्टेक होने से रही आसानी से। नाउ आई होप दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट and the question. If still any doubt, you can leave a WhatsApp message or leave a comment in the video so that I can make and upload the next video accordingly. Thanks. Have a nice day.